आगाज तेरे यस नाम मैम। से है, कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबां। ऑनरेबल प्रिंसिपल एस.सी. हाले सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद, नैक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, IQSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैडम, and academic head Dr. Mubin Nazir sir, and today have come chief guest physical director Professor Rizwan Khan sir, and my colleague professor teaching and non-teaching staff. Hello, good morning. First of all, I would like the welcome to the honorable principal, vice principal, and heartily welcome the NAC coordinator and AQSC coordinator, and heartily welcome to the have come chief guest Professor Rizwan Khan sir, and welcome of all you. Today have gathered here for the National Voters Day and NGV's Arts, Commerce, Science College by the NSS and by the SDO and by the Department of Political Science organized the webinar, the occasion of the National Voters Day. Today our 12th ceremony of the National Voters Day. The main aims and object of these days in order to encourage more than more young voters to take part in the political process. The government of India has declared to celebrate 25th January every year as a National Voters Day. New voters are enrolled in the electoral rules. So today how celebrate 12th National Voters Day, 25th January 2022. The main themes of today how the themes for the year National Voters Days is making election inclusive, accessible, and participative. Vice President of India Venkaiah Naidu was supported to be chief guest for this event. And for the welcome speech, I would like to invite Honorable Vice Principal Dr. Shakib Ahmed टू प्रेजेंट द वेलकम स्पीच। और मैं शेर के साथ आवाज देती हूँ, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। डॉक्टर शकीब अहमद सर। Thank you, Nancy ma'am. On behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City, I, Dr. Shakib Ahmed, Vice Principal of the college, welcome the chief guest of today's program, Dr. Professor Rizwan Manullah Khan sir, for the speech, for the keynote speech. I welcome all the participants to this webinar on National Voters Day, and I hope that today's webinar will be beneficial for the participants, for the students, and we will definitely achieve the objectives of today's webinar. Once again, I congratulate and welcome all the dignitaries. Thanks. Thank you. Okay, thank you very much. Now, today how the first ever National Voters Day was celebrated on 25th January 2011. Now, Dr. Baba Sahab Ambedkar drafted the permanent draft committee chairman, and Dr. Baba Sahab Ambedkar write the outstanding features of adult franchise. Now, every citizen of India completed the 18-year age, our constitution to provide of the right to vote. So today how the वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। अब मैं आज के हमारे आए हुए चीफ गेस्ट डॉक्टर फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर रिजवान खान सर को इनवाइट करती हूँ। और बट नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ वोटिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, और मैं उनकी खिदमत में इस शेर पेश करती हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। प्रोफेसर रिजवान खान सर।
Thank you, madam. Respected Principal Hale sir, Vice Principal Dr. Shakib sir, Coordinator Arif Anjum sir, next faculty deans, all the member of staff, all participants. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हम दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में रहते हैं। सबसे बड़े जमहूरी मुल्क इसलिए कि आज हिंदुस्तान में 80-90 करोड़ वोटर्स एक साथ वोट डालते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है और कि हम इतने बड़े जमहूरियत के फर्द है, इतने बड़े जमहूरियत के हम हिस्सेदार है और इतने बड़े जमहूरियत में हम हुकूमत साजी में हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े खुशनसीबी की बात है। फ्रांस में जब इनकलाब आया था, जब तक तो बदला गया और जमहूरियत जब आई तो मुफक्किर ने कहा था कि इस्लाम के उरूज से भी ज्यादा और ईसाइयत के आगाज से भी बड़ी बात और वैदिक धर्म के ज़हूर से भी पहले से उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हमको वोटिंग राइट्स मिला। तो ये पूरे यूरोप में जो जश्न मनाया गया था उसके अंदर लोगों का जोश इसलिए था कि हम अब इसका हिस्सा है, अब हम जमहूरियत को बनाने के अंदर हमारा इसका एक हिस्सा है और हम इसका एक फर्द है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उस वक्त तो बैक कलम और बैक वक्त एक साथ सबको वोटिंग राइट दिया गया, रिस्पेक्टिव टू कास्ट, कलर, क्रिएट, सेक्स, स्टेटस, कोई चीज देखा नहीं गया। जो बालिग शहरी है उसको वोट देने का राइट्स है। ये हमारी खुशनसीबी है। हमारे उस वक्त के जो लीडरान थे, उस वक्त के जो दानिश्वर थे, उस वक्त जो हमारे रहनुमा थे, वो नेहरू हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो या सरदार पटेल हो या मौलाना आजाद हो, इन्होंने बड़े दिल के साथ, बड़े फराग दिली के साथ सबको एक साथ राइट दिया था कि आप सब एक साथ वोट डालें। जो हिंदुस्तानी शहरी है और बालिग शहरी है उसको वोट देने का हक है। डेमोक्रेसी की जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लैंड को, जहां पे सबसे बड़ी जमहूरियत की शुरुआत हुई है, वहां पे औरतों को वोट डालने के लिए 300 साल तक का इंतजार करना पड़ा। 3 सदी तक उनको अपने हक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, हक के लिए उनको लड़ना पड़ा, जब कहीं जाके उनको वोटिंग का राइट्स मिला। 1911 में पहली मर्तबा इंग्लैंड, ब्रिटेन जो कि इक्वलिटी की बात करती है और औरतों को शाना बशाना चलने की बात करते हैं और औरतों को मर्दों के साथ काम की, जिसमें सबसे पहले आजादी दिया, उनको 300 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। 300 साल तक उनको वोटिंग के लिए, जमहूरियत में हिस्सेदारी के लिए लड़ना पड़ा, जब कहीं जाके उनको 1911 में वोटिंग राइट्स मिला। उसके बाद में जो सुपर पावर इंग्लैंड अपना अमेरिका बना, अमेरिका के अंदर निग्रोस को, जो काले लोग थे, उनको वोटिंग देने के लिए खूनी खाना जंगी लड़नी पड़ी, खूनी वहां पे जंगे हुई। उसके बाद में कहीं जाकर वहां पे निग्रोस को वोट देने के हक मिला, जिसके अंदर हमारे उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जो कालों के वोटिंग के फेवर के लिए हमेशा कोशा थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, वहां पर उनको जान गंवानी पड़ी। उसके बाद कहीं जाकर वहां के निगरों को वोट देने का हक मिला। इसके बरअक्स हमारे हिंदुस्तान में हर बालिग को वोट देने का हक है। जिस तरह कुदरती रूटिंग है कि आदमी बॉर्न फ्री एंड डाइड फ्री, आदमी पैदा फ्री होता है और कुदरती तौर से मरता भी वो फ्री है, इस तरह जो बालिग हो गया फ्री में उसको वोट डालने का हक है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे पास बिना भेदभाव के, बिना किसी स्टेटस के, अमीर गरीब मजदूर जो भी है हिंदुस्तानी शहरी, उसको जो बालिग है उसको वोट देने के लिए हक है। ये हमारी खुशनसीबी है और हमने इसका फायदा उठाना चाहिए। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसके अंदर तब्दीली ब्लड पेपर से आती है, विदाउट एनी ब्लड, बिना खून खराबे के तुम तब्दीली ला सकते हैं। इसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अच्छा सा उसको अपनी जिम्मेदारी समझो। वोट डालना हमारा फरीजा है, हमारी जिम्मेदारी है। ब्रैकले ने कहा था, मुफक्किर ब्रैकले अपना जो फिलोसफर है, उन्होंने कहा था कि आई एम बिकॉज आई थिंक, मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। और ये बात अरस्तु ने कहा था कि मैन इज अ रैशनल एनिमल, मैन आदमी जो है वो सोचने वाला जानवर है। हम सोचते हैं इसलिए हम
अशरफुल मखलूकात है, हम सोचते हैं इसलिए हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। जो आदमी नहीं सोच रहा है या जो नहीं समझ रहा है वो उसके लिए उसमें और इंसान में और जानवर में फिर फर्क नहीं रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जमहूरियत के अंदर अपना हिस्सेदारी बने। जमहूरियत जो हमको इतना बड़ा फरीजा हमको आज हुकूमत ने आज़ादी के फौरी बाद पहले इलेक्शन से हमको वोट डालने का हक है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कल जो कि हम 73वां यौम जमहूरियत बना रहे हैं, उसके अंदर हमको क्लियर वोटिंग राइट जब से लेके आज तक जो बालिग शहरी है उसको वोट देने का हक है। अब तो ऐसा हो गया कि शादी की उम्र 21 साल है और वोट डालने की उम्र 18 साल है। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि जो 18 साल का हो गया वो मैन हो या वुमेन हो या विदाउट अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, कि किसी भी रीजन का हो या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नस्लों का हो, वो सबको वोट देने का हक है। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इसका हमने फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमने इसके अंदर हिस्सेदारी लेना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि जमहूरियत तर्ज हुकूमत है जिसमें तब्दीली जो लाई जाती है वो ब्लैक पेपर से आती है, विदाउट बुलेट। आदमी कभी चाहेगा इसके अंदर हमको इक्तदार बदलना है तो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी के दबाव में आए वो तब्दीली ला सकता है। हमने देखा है कि केजरीवाल रामलीला मैदान के अंदर धरने पे बैठा और 15 साल से जो महारानी दिल्ली के तख्त पे बैठी थी, शीला दीक्षित, जो किसी की बात सुनने तैयार नहीं थी, उसने रामलीला मैदान से उठा और महारानी को तख्त से उठाया और खुद 15 साल से आज वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो ताकत है और ये जो आजादी है ये सिर्फ जमहूरियत के अंदर मिलती है। जहां पे इज़हार राय को दबाया जाएगा, जहां पे अपनी फर्दी आजादी को दबाया जाएगा, वहां खून खराबा होता है। और जो चीज खून खराबे से हासिल की जाती है वो परमानेंट नहीं होती। जो चीज यकजहती से, फैसलों से, लोगों की राय से हासिल की जाती है वो चीज परमानेंट होती है। जो चीज जिस तरह से हासिल की जाती है, जो चीज ब्लड से हासिल की जाएंगे उसको सेव करने के लिए भी तुमको ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खून खराबे का इस्तेमाल करेगा। ये हमने आज इजिप्ट में देखा है, जहाँ पे इनकलाबात आए, जहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा था, बादशाहत थी या डिक्टेटरशिप थी, वहां पे बदलाव भी खून खराबे से आया। वो इजिप्ट हो कि लीबिया हो कि जहाँ पे सरेआम हुक्मरानों को पटक के मारा गया, जिनको शहीद किया गया या कत्ल किया गया, ये हमने ट्यूनिस के अंदर देखा है। और उससे पहले आप देखेंगे कि जो चीज ताकत से इस्तेमाल की गई वो परमानेंट नहीं रही। वो हिटलर का जर्मनी हो कि स्टालिन का तुम्हारा रशिया हो, ये यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं रही। और जिस तरह से इन्होंने खून खराबे से हासिल की है, चेंजेस थ्रू बाय द बुलेट, नॉट चेंजेस थ्रू बाय द ब्लड पेपर, नॉट बुलेट। जो चीज तुम जिस तरह से हासिल करेंगे उसको दफा के लिए भी तुमको उसी चीज लगेगी, उसको सेव करने के लिए भी तुमको वही चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो जमहूरियत ने हमको आजादी दी है वोटिंग राइट्स का, तो हमने उसको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और हम इसके हिस्सेदार है, हम इसका जमहूरियत के हम भी एक फर्द है। हमारी राय को भी मुकद्दम माना जाता है। हमारे तक लोग आके वोटिंग के लिए बोला करते हैं, हमको वोटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या तुम्हारे उम्मीदवार की तरफ से हो, आपके लिए अपील की जाती है। तो आपको जब रेस्पेक्ट मिलता है तो आप लोगों ने भी उसके पास रखना चाहिए और वोट डालने के लिए आना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट सिगमैंड फ्रेडरिक, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, जिसकी थ्योरी के ऊपर आज तक दुनिया चल भी रही है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, उसने बोला था कि आदमी की जो फितरत है, जो जिबिलियत है, लव एंड टू बी लव, कि प्यार करो और प्यार चाहो। ये एक चीज है, कितना भी आदमी कोई भी स्टेटस का हो या किसी भी नस्ल का हो या किसी भी देश का हो, उसकी एक फितरत होती है कि वो भी लोगों को प्यार करे और उसे भी लोग प्यार करें। तो एक फितरत है। आज तुम देखो लोग घर तक आके वोटिंग के लिए तुमको रेस्पेक्ट करके जाते हैं, रेस्पेक्ट से बुलाते हैं, वोटिंग के लिए अपील करते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप भी वहां तक जाके आप भी वोट डालें। और वोटिंग डालना ये एक तुम्हारा एक लाकी फरीजा भी है, सियासी फर्ज भी है।
उसके बाद में ये एक तुम्हारा रूहानी फरीजा भी है और एक मजहबी फरीजा भी, इसको मैं तो मानता हूँ, क्योंकि वोटिंग सिर्फ एक वोट डालना या ब्रेड पेपर के अंदर एक टप्पा मार के डालना ये नहीं है। वोटिंग एक शहादत है। तुम इसके उम्मीदवार की तुम शहादत दे रहे हो कि ये उम्मीदवार सही है, तो ये तुम्हारे लिए एक मजहबी फरीजा भी है, इखलाकी फर्ज भी है, सकाफती फर्ज भी है, और डेमोक्रेसी के लिए तो ये एक फेस्टिवल, एक सकाफती फेस्टिवल भी है, नेशनल फेस्टिवल भी है वोटिंग डालना, वोटिंग डे जो होता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छी आप हुकूमत को चुने, अच्छा आप ये करें। इसमें काफी आज़ादी दी गई है, काफी इसके अंदर हमको हमारे हुकूमत बनाने के लिए जिम्मेदारी इसके अंदर हमारी है, और हमने इसको नजदीक से देखा है कि जिसमें एबिलिटी है, जिसमें काबिलियत है, जो इसके अंदर बदलाव लाना चाहता है वो बदलाव कर लेता है। आज हमने हमारे शहर का भी देखो, जिस तरह केजरीवाल ने रामलीला मैदान से उठ के आए और दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठे, सबको अकेला क्लियर मेजोरिटी लाके, इतनी बड़ी मेजोरिटी तो शायद ही कभी किसी को मिली होगी जितनी बड़ी मेजोरिटी केजरीवाल ने दिल्ली में लाया, और एक बार नहीं 2 बार लेके आए उन्होंने। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जहां जहां पर भी इक्तदार के नशे में लोग चूर थे, जहां पे ताकत का नशा था, जहां पे पैसों का नशा था, वहां पे कॉमन आदमी ने आके बदलाव लाया, और ये सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर होता है। आज हमारे शहर की भी आप देख लो, हमारे शहर की भी आप देख लो कि यहाँ पर भी इक्तदार के नशे में चूर लोग थे, और मंशियात के नशे में थे, और शराब के नशे में लोग चूर थे, जो कि किसी की सुनना नहीं चाहते थे। एक जामा मस्जिद के मेंबर से कोई इमाम उठ के आता है और मुफ्ती साहब आके उन्होंने बदलाव लाया, और शहर ने उनको उनकी आवाज पे लब्बैक का, और वो आज जो एमएलए है हमारे शहर के। तो ये जो चीज है, ये जो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो है ये सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ये खूबसूरती है और ये जो ब्यूटी है कि एक कॉमन आदमी भी आ कभी चाहे, एक मस्जिद का इमाम ये क्या जंग लड़ सकता था कि बुलेट से या गोली से बदलाव ला सकता था क्या? तो ये जो खूबी है ये हमारे डेमोक्रेसी में है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको ये पावर दिया है कि हम बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारे पसंद का इंसान को, आदमी को, लीडरान को आप चुन के ला सकते हैं। तो ये आप सब लोगों का फरीजा है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। 25 जनवरी आज जो यौम वोटर्स मनाया जाता है, इसको अच्छी से इसको मनाना चाहिए, लोगों के अंदर इसके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, लोगों के अंदर इसमें बेदारी आना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है अब जो है वोटिंग डालना। जिस तरह बैक वक्त आज़ादी के बाद में हमारे जो लीडरान ने हमको एक साथ एक कलम से विदाउट एनी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, स्टेटस सबको वोटिंग का राइट दिया था, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी कदर करें और हम उसको वोट डालें। आज इसके बरखिलाफ जो है कि जो पावर जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वोटिंग राइट्स मखसूस लोगों का खत्म हो जाए, मखसूस लोगों को वोटिंग राइट से बाहर की जाए। आज हमारा वोटिंग पावर है तो हम जिंदा है, जमहूरियत के तौर पे और इक्वलिटी के तौर पे हम जिंदा है। अगर कभी हमारा वोटिंग पावर खत्म हुआ तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं, वो किसी भी कास्ट का हो और किसी भी स्टेटस का आदमी हो, उसको कोई पूछेगा नहीं। आज तुम्हारा वोटिंग पावर है, इसलिए तुम्हारे एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाता है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात की जाती है। अगर कभी वोटिंग पावर ही खत्म हो जाएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर भी जो ताकतें हैं, पहले फराग दिल के लोग थे, फराग दिल के लीडरान थे जो सबको लेके चलना चाहते थे, सबको लेके चलते थे। आज इन्होंने कहीं एनआरसी के नाम पर और कहीं कुछ लोगों को वोटिंग में कट करने की तैयारी में आज भी लगे। तो इसके अंदर आप वोट डालना, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, वोटिंग डालना। जब भी तुम्हारी आइडेंटिटी की जाएंगी उसके अंदर पहला डॉक्यूमेंट तुम्हारा वोटिंग में तुम्हारा नाम है कि नहीं, और तुमने कितने बार वोट डाला, ये पहला डॉक्यूमेंट देखा जाने वाला है। इसलिए अब वोट डालना तुम्हारे लिए जरूरत भी होती जा रही है। तो वोट डालना अब तुम्हारी जरूरत भी है, आप लोगों को वोट डालना बिल्कुल जिम्मेदारी है। कई सदियों की जद्दोजहद के बाद में हमको आज़ादी मिली, और कई सदियों की जद्दोजहद के बाद, सैकड़ों साल के बाद में हमको ये आज़ादी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमको आज़ादी मिली। आज ये 73वां साल चल रहा है हमारे आज़ादी का।
तो आज भी हमने उसकी कदर करना चाहिए कि इतनी जद्दोजहद के बाद में, इतने लोगों की शहादत के बाद में, इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद में, इतनी जेल की सख्ती सहने के बाद में जब लोगों ने इतनी बड़ी आज़ादी हमको दी है, इतना बड़ा हमारे लिए जब इन्होंने काम किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसमें वोट डालना चाहिए। हर दौर के अंदर ये इस्लामी खुलफा राशिदीन के अंदर भी इत्तेफाक राय से लोगों को चुना जाता था। ये इस्लामी फरीज़ा भी है, हमेशा इत्तेफाक राय से और लोगों के मशवरे से, लोगों की राय जानकर, लोगों की हुकूमत में जहाँ पर भी लोगों की राय मुकद्दम की जाती है, वहीं पर ही खुशहाली रहती है। जहाँ पे खून खराबे से जो चीज़ हासिल की जाती है, वहाँ पे एनर्जी तामीरी तौर से ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे डेवलपमेंट की बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर लोगों के मुस्तकबिल की बात खत्म हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार की बात रहती है और सिर्फ ताकत की बात रहती है। हमने देश को बर्बाद होते देखा है, वो तुम्हारा इराक हो कि तुम्हारा लीबिया हो या ट्यूनिस हो कि इजिप्ट हो, जो कि खुशहाल देश थे, जो पूरी दुनिया में राज करने जैसी जिनकी ताकत थी, हो या कोई और भी कुछ हो। यहाँ पे इन्होंने वोटिंग राइट दबाया, लोगों के इज़हार राय को दबाया, जहाँ पे लोगों की राय लिए बिना हुकूमत किए आज वो देश बर्बाद हो गए। आज हमारा देश इसलिए तरक्की कर रहा है कि ये नौजवान देश है, नौजवानों को उनका हक मिल रहा है। 18 साल की उम्र के जो भी हो जाता है बालिग इंसान, उसको वोट डालने का राइट्स है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खूबी है। तो अब तुम्हारी हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोटिंग में हिस्सा लें और अच्छे उम्मीदवार को चुन के दें, जो हमारा फैसला करे, जो हमारे शहर का फैसला करे या हमारे मुल्क का फैसला करे, वो हमारे लिए का अच्छा इंसान होना चाहिए। वोटिंग राइट जब हमको दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने अच्छा उम्मीदवार देना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा कि ये वोटिंग राइट से एक इखलाकी फरीज़ा और सकाफती फरीज़ा जमहूरियत के लिए हो सकता है, मगर हमारे लिए तो एक मजहबी फरीज़ा भी है। वोट सिर्फ वोट नहीं है, फिर मैं बोलूँगा वोट एक शहादत है। वोट डालना यानी तुम अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब कर रहे हैं, तो आपको जो अच्छा उम्मीदवार दिखता है आप उसको बिल्कुल वोट डालो और बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी खौफ के आप लोग इसके अंदर वोट डालो, क्योंकि यही हमारे हुकूमत करेंगे, यही हमारे हुक्मरान रहेंगे। जो आप जिस तरह से आप लोग हुक्मरान चुनेंगे, हाकिम भी आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो हमारे लिए दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बताया गया है कि कम से कम उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। जब तो इसके ऊपर कितने केसेस है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी डाला है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसमें केसेस कितने हैं, उसकी तालीमी लियाकत कितनी है, ये भी जाहिर करना पड़ता है, एफिडेविट में देना पड़ता है और इलेक्शन पोलिंग बूथ के ऊपर वो लिस्ट लगाई जाती है। जो भी उम्मीदवार हो उसकी काबिलियत क्या है, तालीमी काबिलियत कितनी है, उसका क्राइम कितने हैं, उस पर कितने जुर्म है, कितने केसेस है, वो भी लिखा जाता है। उसके ऊपर कितने प्रॉपर्टी है, पैसा कितना है, वो भी उसके लिखा जाता है। तो ये सब बात आपको देखना है और ऐसे उम्मीदवार को चुनना है, ढूंढना है जिसमें कम से कम, जो कि हमारे मजहब में बताया भी गया कि इंसान ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम मजहबी गिरावट ना हो, इखलाकी गिरावट ना हो, समाजी बुराइयां ना हो। ऐसे उम्मीदवार को आप लोग चुनो। आगे इसे हमको भी, हमारे शहर को भी देखना है, हमारे पास भी आगे इलेक्शन है, हमको भी शहर के क्या बोलते हैं ना कि तकदीर का शिकवा बेमानी, जीना है तुझे मंजूर नहीं। आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो आप इतने मजबूर मत बनो, अच्छे उम्मीदवार को आप लोग चुनो, अच्छे उम्मीदवार को बनाओ। ये मान हमको हमारे शहर का भी डेवलप करना है, तो हमको हमारी जिम्मेदारी पहले होती है कि हम अच्छे उम्मीदवार चुनें। आप अच्छे उम्मीदवार देंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा, और नहीं तो जहां तुमको अच्छे लोग लगते हैं, और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जो जिनमें काबिलियत है, जिनमें हिम्मत है शहर को बदलने की, जिनमें हिम्मत है मुल्क को बदलने की, वो बिल्कुल राजकारण में आना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हमारे शहर की, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो जामा मस्जिद के मेंबर से उतरे और इक्तदार में आके एमएलए बने, और अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान ने उनको सर आंखों में बैठाया और 40,000 वोट से उनको कामयाबी बनाई। मैं तो एक कॉलेज का प्रोफेसर था और एजुकेशन फैमिली का फर्द था। मैं, हमारा तो बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल नहीं था। हमको भी लगा कि शहरियान के अंदर कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, कहीं इक्तदार के नशे में और ताकत के नशे में अच्छे लोग नहीं आते तो बुरे लोग राज कर रहे। तो 2007 में
हम भी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उतरे और राजकारण में, और अल्लाह ने हमको भी नवाजा। लोग अच्छे इंसान को पसंद करते हैं, अच्छे लोग आना चाहिए, अच्छे लोग कामयाब होना चाहिए, इसलिए एक आम इंसान की पसंद है। मैं जैसे बोला हूँ ना कि सिगमंड फ्रेडरिक ने बोला है, हर कोई चाहता है कि उसको उसको रेस्पेक्ट मिले, हर इंसान चाहता है कि लव एंड टू बी लव, मैं भी लोगों से प्यार करूं और लोग भी मुझसे प्यार करें, ये हर इंसान का फर्ज है। हिम्मत तुम में होना चाहिए आगे आने की, बदलने की, बदलाव लाने की, जब बदलाव आता है। तो मैं आप लोगों से फिर बोलूंगा, जिस तरह मैं कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उतरा 2007 में और हमने हमारा मेयर बनाया, हमारे पसंद का मेयर बनाया, और जितने लोग ताकत के घमंड में, गुरूर में थे, हम नशे के सरसार थे, हमने सबको उतार के बाहर फेंका। तो मैं चाहूंगा कि वोटिंग सबसे बड़ी ताकत है आज हमारे देश में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, और हमको ये इतना इजीली और इतना फ्रीली मिला है ना कि हम उसकी कदर नहीं करते। आज बड़े सिटीज के अंदर भी मैं काफी देखता हूँ कि वोटिंग रेशो बहुत कम रहता है, वो एक हॉलीडे जैसा छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। ये छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप अपना वोटिंग राइट्स ले, आप अपना वोटिंग का जो हक है, जो फरीजा है, उसको आप लोग अदा करें। तो ये चीज के लिए आप लोगों को वो दिया गया है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर वोटिंग में हिस्सा लो, ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के लिए, देश के लिए, हमारे कौम के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, ऐसे लोगों को करो। इसके अंदर चेंजेस जो है डेमोक्रेसी में ब्रेड पेपर से आती है, तो आप लोगों का फरीजा है कि वो डालो। और अब तुम्हारी हमारी सबकी जरूरत है वोटिंग डालना, क्योंकि एनआरसी के अंदर पहला डॉक्यूमेंट्स है। ये तो ये लॉकडाउन और ये आ गया इसलिए वो काम रुक गया है, नहीं तो कुछ ताकतें ऐसी है, कुछ फिरका परस्त लोग ऐसे हैं जो मखसूस तबके को चाहते हैं कि वोटिंग से इनको रेशो इनका कम किया जाए, जहाँ पे इनका असर ना पड़े किसी एरिया में। तो और उसके बाद में अगर कभी वोटिंग का रेशो हमारा खत्म हुआ या कम हुआ, तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही दुख की बात होने वाली है। इसलिए आप सबको मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर एक हमारे जिम्मेदारी समझ के, एक हमारा फरीजा समझ के आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए इसके अंदर आप लोग आए। और हमारे खाली तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे खानदान की वोटिंग डलवाना चाहिए, पूरे मोहल्ले की वोटिंग डलवाना चाहिए। आप लोग साहब का जहाँ जहाँ असर है, जहाँ जहाँ आप तक बात पहुंचा सकते हैं, ये बात बिल्कुल आप लोग पहुंचाओ कि वोटिंग हमको ज्यादा से ज्यादा करना है, और ये आज़ादी हमको मिली है, इसकी हम कदर नहीं करते। ये हमको बाय बर्थ हम बालिग हो गए और हमको वोट डालना है, ये चीज फाइनल है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। आप लोग उसकी कदर करो और उसको समझो, अच्छे उम्मीदवारों को आप वोट डालो और अपनी जिम्मेदारी से हुकूमत को चुनो। और मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वोटिंग डे के अंदर मुझे स्पीच के लिए बुलाया है, और इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए हर इलेक्शन के टाइम। ये 25 जनवरी को नहीं, हर इलेक्शन से पहले होना चाहिए, हर उसके अंदर वोटिंग की अपील करना चाहिए, हर प्रोग्राम में वोटर्स की अपील करना चाहिए, क्योंकि इक्तेदार और राजकारण जो है इसी से सब चीज होता है। वो तालीमी हो कि सेहत की बात हो, कि तुम्हारे डेवलपमेंट की बात हो, कि शहर की तरक्की की बात हो, कि हेल्थ की बात हो, ये पूरी ताकत आज जो सिस्टम है ये सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर है, सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर है, सिर्फ मेंबरान के अंदर है। और उसको जाहिल हमारे मेंबर आने से होता है ये क्या है कि इसको मैनिपुलेट करके इसका फायदा जो अधिकारी उठाते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, ये इसका फायदा उठाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, क्या हमारा राइट्स है, एक एमएलए का क्या पावर है, एक एमपी का क्या पावर है, एक कारपोरेटर को क्या अधिकार है, ये सारी चीजों की मालूमात होना चाहिए। हमको ब्यूरोक्रेट्स चलाए और हम उनके लिए नरम चारा बने, ऐसे उम्मीदवार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आए, सूझबूझ के लोग इसके अंदर आए, और जिनको दिल से बदलने की, पहली बात तो एक क्या, बेसिकली आदमी के अंदर ही बदलाव की चाहत होना चाहिए। जब भी बदलाव आता है तो एक आदमी ने के अंदर भी एक अच्छे खुद को बदलने की चाहत होना चाहिए, जब भी बदलाव आऊंगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर वोटिंग के अंदर हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात को पहुंचाए, वोटिंग की अहमियत को पहुंचाए। और हमको जो नेमत मिले, लोगों को सदियां लग गई खाना जंगी लड़ने में वोटिंग के राइट्स के लिए, अब कहीं जाके उनको मिली है। हमारे लीडरान ने हमको मुफ्त में फराग दिली के साथ आज़ादी के बाद से बैक कलम बैक वक्त
एक साथ सबको वोट डालने का जो राइट दिया है, इसीलिए आज हम हमारे देश के अंदर अमन है, सुकून है, मगर हमारी जो जिम्मेदारी है हमने उसको अदा करना चाहिए। आप लोगों से फिर मैं अपील करूंगा कि आज जो भी इलेक्शन हो, वो कारपोरेशन हो कि एमएलए हो कि ग्राम पंचायत हो कि जेडपी हो कि एमपी का हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे उम्मीदवार को दें। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। थैंक्स सर। डेमोक्रेसी वो तर्ज हुकूमत है जहां दस्तूर लिखे जाते हैं, दस्तूर बदले नहीं जाते। द वोटिंग पावर इज पॉलिटिकल वेपन, बाय द वोट टू चेंज द गवर्नमेंट केम इनटू द रिवोल्यूशन। तो देखिए आज ने इस प्लेटफॉर्म से सर ने मैसेज दिया, माय वोट इज माय फ्यूचर। थैंक यू सर। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर शरीफ सर for that present the vote of thanks. Sharif sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. On the occasion of National Voters Day, MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City organized today's program by Department of Politics, NSS and SDO. In this program, first of all, I would like to thank our principal, Mr. S.C. Hale sir, Vice Principal Dr. Shakib Ahmed sir, and NAC Coordinator Dr. Ari Pancham sir. And I would like to especially thank to our today's speaker, Professor Rizwan Khan sir, for giving so valuable information about voting and the rights, duties, and responsibilities of the voters. Sir, I'm very much thankful for that. And I would like to thank our IKC coordinator, Dr. Rizwan Hamdani ma'am, CEO, Dr. Mubin Nazir sir, Dr. Nasim ma'am, HOD of Politics Department, NSS officer, Professor Imran Ahmed sir, and all teaching and non-teaching staff. And lastly, I would like to thank all the participant students. And with the kind permission of today's program, the program is over. Thank you.